Hello everyone, I hope you are doing good. So let's start the second lecture of the particular chapter sexual reproduction in flowering plants. तो हमने लास्ट चैप्टर में इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट अ बिट अबाउट द चैप्टर आल्सो. ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमने जो देखा था इट वाज अबाउट हाउ टू फाइंड आउट इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच आर गिवन इन द चैप्टर एंड हाउ दे आर रेलेवेंट फॉर नीट क्वेश्चंस. हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय रीडिंग द टेक्स्ट. ठीक है, कैसे हम चीज़ों को समझें. ठीक है, तो यही डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते जाएंगे आज, और हम और भी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे. ड्यूरिंग द ड्यू कोर्स ऑफ द डिस्कशन आपको पता चलेगा कि चीज़ें मतलब किस हिसाब से हम अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं फॉर द नीट एग्जामिनेशन. ओके, सो लेट्स गो अहेड. ओके, सो this particular topic is called flower, which is a fascinating organ of angiosperms. Okay, angiosperms, as you know, are the flowering plants. So flowers को क्या बोला गया है? They are called a fascinating organ of angiosperms. So a brief एक idea दिया जा रहा है यहाँ पे. It said that human beings have had an intimate relationship with flowers since time immemorial. तो बहुत मतलब लंबे टाइम से फ्रॉम अ वेरी डिस्टेंट पास्ट हम अगर चीज़ों को देखें तो हमेशा फ्लावर्स का जो है हमारे कल्चर के साथ या फिर हमारे हिस्ट्री के साथ एक रिलेवेंस रहा है. ठीक है, फ्लावर्स हैव बीन अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ सिंस अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ओके, नाउ फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक. एस्थेटिक मतलब समथिंग विच गिव्स यू मतलब अच्छे वाइब्स जो देता है ना, विच फील्स गुड. ओके, एस्थेटिक. ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल मीन्स डेकोरेटिव सॉर्ट ऑफ. ओके, social, religious and cultural value. Okay, so flowers have been providing us with these values like aesthetic, ornamental, social, religious and cultural value. Now this statement जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, it's a very generalized and a common statement, but be careful. Okay, be a bit attentive कि कहीं ऐसा हो सकता है कि एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाए या फिर एक एमसीक्यू आ जाए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ना, एस्थेटिक एक पॉइंट है, ऑर्नामेंटल एक पॉइंट है, सोशल एक पॉइंट है, रिलीजियस एक पॉइंट है, कल्चरल वैल्यू एक पॉइंट है. तो कुछ पॉइंट वाइज इन चीजों को दिया हुआ है. सो प्लीज पे सम अटेंशन टू दिस थिंग. ओके, दे माइट चेंज द ऑप्शंस, दे माइट पुट सम अदर irrelevant options also, and they might create a question. Not so important, but please pay attention. Okay, this might become important down the line. Okay, kabhi na kabhi important ho sakta hai. So they have always been used as symbols for conveying important human feelings such as love. Yeah, so flowers are used for conveying human feelings, है ना. तो आपको पता होगा ना, feelings के हिसाब से कुछ flowers होते हैं, right? So they might be used for conveying love. Roses basically, okay, do this job. Affection, again, maybe you might talk about roses. Then happiness, grief. Okay, mourning, mourning means extreme sadness, you're very sad, somebody passed away or something very unwanted happened. Okay, so that is a condition of mourning. Okay, etc. So basically flowers have been linked with our day to day life. uh, they have been historically very important for us. और फ्लावर्स को हम देख सकते हैं कि ये हमारे ह्यूमन फीलिंग्स को कन्वे करने में, एक्सप्रेस करने में काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है, सो लिस्ट एटलीस्ट 5 फ्लावर्स ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू. ऑर्नामेंटल मतलब जो एक गुड फीलिंग देने वाला या डेकोरेटिव वैल्यू जिसका है, उसका एटलीस्ट लिस्ट एटलीस्ट 5 फ्लावर्स ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू दैट आर कॉमनली कल्टिवेटेड at homes and in gardens. Okay, so let's try to list down 5 flowers. Okay, that are generally very significant. Okay, so roses are common in this. Okay, you might find lily also. You might find also flowers like marigold. Okay, what else? uh, Other flowers like hibiscus. Okay, and the fifth one, what would you like to see here? Roses, lily, marigold, hibiscus, and let's put a flower like dahlia. Okay, this will do the job. Okay, and again, it's saying that find out the names of 5 more flowers that are used in social and cultural celebrations in our families. जैसे होता है ना, कोई सोशल इवेंट हो रहा है, कोई कुछ कल्चरल इवेंट हो रहा है, जैसे roses are also used in that. Okay, lilies might be used, marigold might be used, hibiscus might be used. Okay, I'm not so sure about dahlia. Okay, if they're used or not, but additionally तुम और एक यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसे कि orchids. Okay,
Okay, particularly in the state of Assam, orchids have a very important cultural value. Okay, so find out the names of 5 more flowers that are used in social and cultural celebrations in your family. Have you heard of floriculture? Have you heard of this term, floriculture? And what does it refer to? Floriculture is a term, it refers to the um, the science or the art behind cultivation of flowers. Okay, so basically the cultivation of flowers that floriculture refers to. Okay, now these are all basic things. Okay, these are like social science like things. Okay, how commonly flowers are used in different settings. Now what are we are students of biology, right? So we हमारा जो टारगेट है ना वो ये है कि हम बायोलॉजिकली फ्लावर्स का जो इम्पोर्टेंट है उस इम्पोर्टेंस है उस चीज को समझे. सो टू अ बायोलॉजिस्ट flowers are morphological and embryological marvels and the sites of sexual reproduction. तीन चीजें हैं. फॉर एज ए बायोलॉजिस्ट एक फ्लावर जो होता है उसका मॉर्फोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, बिकॉज इफ यू लुक एट अ फ्लावर उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसका जो डिटेल होता है दैट इज क्वाइट डिफरेंट कंपेयर टू other structures in the present in the particular plant. Okay, then these are also embryological marvels. Okay, and there are also sites of sexual reproduction. We also हम ये भी बोल सकते हैं ना कि फ्लावर जो होता है ना those are the sites of sexual reproduction in plants, or flowers help in or flowers are involved in sexual reproduction in plants. So in earlier classes you have read the various parts of a flower and there's a figure which is given there which will help you recall the parts of a typical flower. Let's look at the diagram. Okay, or the figure. So if you look here, this is a diagrammatic representation of the LS of a flower which is given here. Okay, if you come here, let's start from the base. Okay, this is basically the thalamus part which is being shown here. Then if you move upwards, you see the sepal. Okay, sepals. These are green structures which are present towards the base of the flower. Then you have these structures which you'll see the next one. These are petals. These are generally colorful. Sometimes they are also white. Okay. अच्छा, let me tell you something. Okay. एक चीज है, अगर फ्लावर का पेटल जो है मतलब कलरफुल है तो उसके पीछे का पर्पस क्या है? ठीक है, ऐसा सवाल पूछा जाता है ना, आपको भी पता होगा. पेटल्स आर कलरफुल बिकॉज दे आर हेल्पफुल इन अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर्स. पॉलिनेटर जैसे इंसेक्ट्स वगैरह हो गए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए क्या होता है, फ्लावर्स जनरली उनके पेटल्स जो है वो कलरफुल होते हैं. ठीक है, देन लुक एट दिस स्ट्रक्चर. ये तुमको ये आपको दिख रहा होगा ना, ये फिलामेंट है. ठीक है, ये एंथर है इसका. ठीक है, दिस इज द एंथर. सो दिस एंटायर स्ट्रक्चर, फिलामेंट, एंथर, ये सारा चीज मिलके ये बना देता है द stamen or the male reproductive part of a flower. Okay, then here if you come, आपको यहाँ पे ओवरी दिखेगा. ठीक है, और इस ओवरी से इमर्ज होता हुआ एक लंबा सा स्ट्रक्चर which is known as the style, और यहाँ पे आ जाता है स्टिग्मा. ठीक है, they are a part of the female reproductive structure. ठीक है, the ovary, style and the stigma, they form the pistil. Okay, so ये चीज आपको शायद पहले भी पता था, अब फिर से सुन लीजिए, है ना. तो दिस इज द पॉइंट. ओके, सो शैल वी मूव अहेड. ओके, चलते हैं आगे. नाउ अब कुछ इवेंट्स हैं इस चैप्टर में. ठीक है, शायद मैंने लास्ट क्लास में भी ये चीज आप लोगों को समझाया था. ठीक है, देयर विल बी सर्टेन इवेंट्स. जैसे एक इवेंट है प्री फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले के वाला इवेंट. ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन एक इवेंट है खुद में. ठीक है, और उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन. ठीक है, तो ये तीन इवेंट्स में इस पूरे चैप्टर को हम लगभग इसको डिवाइड कर सकते हैं इन अ सर्टेन सेंस. ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट प्री फर्टिलाइजेशन. ओके, द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड the structures and that are involved in pre-fertilization, or the structures that develop during pre-fertilization, and the various events which are related to pre-fertilization. अब pre-fertilization का मतलब क्या होगा? Fertilization यानी कि the fusion of two gametes, है ना. तो वो gamete का जो formation होगा that will be a part of pre-fertilization, right? Okay. और उस gamete formation में जो structure involved होगा, ठीक है, तो वो भी इसी का हिस्सा हो जाएगा. Okay, so let's discuss this one. Okay. So much before the actual flower is seen on a plant, the decision that the plant is going to flower has taken place. मतलब even before you see a flower that has
बीइंग फॉर्म्ड या एक फ्लावर बन गया है, ठीक है, उसके काफी टाइम पहले से ही आपको पता चल जाता है या फिर प्लांट को पता रहता है कि द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर। ओके, देयर आर सेवरल हार्मोनल एंड structural changes which are initiated which lead to the differentiation and further development of the floral primordium. अगर हम hormonal changes के बारे में बात करें, there's a hypothetical substance which is called florigen, ठीक है, this substance called florigen is involved in flowering of the plant. Okay, now the structural changes, okay, you have the meristems which take part in flowering of plants. Okay, now inflorescences are formed which bear the floral buds and then the flowers. Inflorescence yani ki the collections of flowers, okay, the entire structure that of the collection of flower, that is known as the inflorescence. Okay, तो inflorescence में initially आपको floral buds दिखेगा and then आपको मिलेगा उस bud से निकला हुआ flower. Okay, now in the flower the male and female reproductive structures जिसको हम एंड्रोशियम और गाइनोशियम बोलते हैं, ठीक है, ये डिफरेंशिएट होते हैं और ये डेवलप होते हैं। डिफरेंशिएट होना यानी कि इसके अलग अलग पार्ट्स जो है उसका डेवलपमेंट होना, दे डिफरेंशिएट एंड दे डेवलप। ओके, नाउ यू वुड रिकलेक्ट दैट द एंड्रोशियम will consist of a roll मतलब it's a collection, roll means a collection of stamens, okay, and it would represent the male reproductive organ, and the gynoecium जो कि आपका female reproductive organ है, ठीक है, it represents that. Okay, क्वाइट इजी है ना, ये काफी सिंपल चीजें हैं। आपको यहाँ से ये याद रखना है कि एंड्रोशियम क्या है, ठीक है, गाइनोशियम क्या है, ठीक है, इन सब चीजों को याद रखना है और ये सब चीजें जो है वो रिपीट भी होती रहेंगी इन द चैप्टर। ओके, सो नॉट अ बिग इशू, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, लेट्स कम टू द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी कि एंड्रोशियम। ठीक है, अब इसके पार्ट्स हम देखते हैं। पहला पार्ट स्टेमन, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम एंड उसके बाद हम देखेंगे पोलन ग्रेन। ओके, पोलन ग्रेन व्हिच कंटेन्स द मेल गैमेट्स। ठीक है, ओके, लेट्स बिगिन नाउ। Figure 1.2a shows the two parts of a typical stamen, the long and slender यानी कि पतला stalk called filament, and the terminal generally bilobed structure called the anther। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, पतला सा लंबा है ना, इट्स अ स्लेंडर स्ट्रक्चर। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को कहा गया है द फिलामेंट और स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? अगर कोई स्ट्रक्चर है ना जिसके ऊपर मतलब जिस पे कोई और एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, दैट इज नोन एज द स्टॉक। ठीक है, एंड दिस इज द स्टॉक हियर। ओके, नाउ एट द टॉप ऑफ द स्टॉक इज द एंथर। ओके, नाउ द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। ये जो प्रॉक्सिमल एंड है, ठीक है, ये जो प्रॉक्सिमल एंड है, प्रॉक्सिमल एंड किसके साथ अटैच्ड है? इट इज अटैच्ड टू द थैलेमस। Okay, thalamus, or it is attached to the petal of a flower. Remember this thing. Okay, हमको हमेशा लग सकता है ना कि ये थैलेमस के साथ ही अटैच्ड होगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है। ये कभी कभी पेटल के साथ भी अटैच्ड होता है और आपने अगर मॉर्फोलॉजी चैप्टर पढ़ा है तो you'll have a fair bit of idea ये किसके बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। Okay, now the number and length of stamens are variable in different in flowers of different species। ठीक है, अब इसका कोई फिक्स लेंथ नहीं है। ओके, द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमेंस आर वेरिएबल। ठीक है, कि कितना स्टेमन होगा, 5 होगा, 10 होगा, 15, 20 क्या होगा, ठीक है, वो भी कोई फिक्स नंबर नहीं है उसका। ठीक है, अब इसका क्या लेंथ होगा वो भी फिक्स नहीं है, इट विल डिपेंड अपॉन स्पीसीज टू स्पीसीज। ओके, इफ यू वेर टू कलेक्ट स्टेमन ईच फ्रॉम 10 फ्लावर्स and each from different species and arrange them on a slide, you would be able to appreciate the length, appreciate the large variation in size seen in nature। ठीक है, तो आप 10 अलग अलग फूल लेके आओ, उनके साथ सभी के मतलब आप स्टेमन लेके आओ, अलग अलग ऐसे अरेंज करके रख दो स्लाइड पे, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ यार बहुत सारा डाइवर्सिटी है इनके स्ट्रक्चर्स के बीच में। ठीक है, अब केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमन अंडर ए डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप एंड मेकिंग नीट डायग्राम्स वुड elucidate मतलब explain the range in shape and attachment of anthers in different flowers। Not so relevant for us, but हाँ इतना हमको याद रखना है कि different flowers will have different number of stamens
and those different number of stamens will have variable length of this stalk. ठीक है, ऐसा कोई कांस्टेंट चीज यहाँ पे है नहीं. ओके, मूविंग अहेड, अगर हम एक टिपिकल एंजियोस्पर्म के बारे में बात करें और एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का एंथर के बारे में बात करें, तो वो एंथर क्या होता है? वो एंथर बाइलोब्ड होता है, दो लोब्स ऐसे जुड़े हुए होते हैं. ठीक है, इट्स अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर. ओके, इट इज बाइलोब्ड एंड हर एक लोब में दो थेका होता है. दो थेका यानी कि दो स्पेसेस होते हैं उसके अंदर. ठीक है, ईच लोब हैविंग टू थेका, दैट इज दे आर डाइथेकस. ठीक है, remember this thing very clearly. Okay, the typical angiosperm anther is bilobed. ये मतलब ऐसा डेटा है या ऐसा इंफॉर्मेशन है ना जो नीट में पूछा जा सकता है या पहले भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है. ठीक है, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग बट इट इज बीइंग आस्क्ड अगेन एंड अगेन. सो दिस इज अ bilobed or a, we can call it bilobed or dithecus. ओके, दे आर ईच लोब हैज, हर एक लोब के पास एक एक थेका होता है, इसलिए हम इसको डाइथेकस बोलते हैं. ठीक है, नाउ ऑफन ये देख लो आप, यहाँ पे भी दिख रहा है. ठीक है ना, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ दिख रहा है ना, ये एक लोब है. ठीक है, ये एक लोब है. ठीक है, इस लोब के अंदर ये एक थेका है, ये एक थेका है. इस वाले लोब का ये एक थेका है, ये एक थेका है. ठीक है, और ऑफन क्या होता है? ऑफन ए लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द दो थेका. अब ये थेका, दोनों थेका को सेपरेट करने के लिए लॉन्गिट्यूडिनली क्या होता है? ऐसे ग्रूव होता है. ग्रूव यानी कि एक इट्स लाइक अ मार्जिन और ए डिमार्केशन. ठीक है, तो वो ग्रूव जो होता है उसको सेपरेट करता है. Let us understand the various types of tissues and their organization in the transverse section of an anther, that is given in figure 1.3. ठीक है, हम वहां तक चलेंगे. The bilobed nature of an anther is very distinct in the transverse section of the anther, and the anther is a four-sided, है ना, चार साइड वाला tetragonal structure, and it consists of four microsporangia located at the corners to each in a lobe. ठीक है, coming to that, आ रहे हैं उस पे. The microsporangia develop further and become the pollen sacs, and they extend longitudinally all through the length of an anther and are packed with pollen grains. Okay, so let's try to see that diagram what is given here. Okay, let's see. Okay, now yeah, you can see this one. ठीक है, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, this is the transverse section of an anther. Okay, this is the transverse section of an anther. So this is basically how an anther looks like if it is being cut transversely. ठीक है, उसको कट करेंगे तो इस तरीके का ये दिखता है. ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो. ठीक है, transverse section of a young anther is an enlarged view of the microsporangium showing the wall layers. This one is the enlarged section. ठीक है, ये layers हम जो भी चीजें हैं यहाँ पे दिया हुआ है उस चीज को हम देखेंगे. ठीक है, and this is a mature anther which has dehisced या फिर जो ब्रेक हो चुका है और यहाँ से pollen grains रिलीज हो चुके हैं. ठीक है, ये उस तरीके का स्ट्रक्चर है. ओके, नाउ हमको यहाँ से ना क्या क्या इंफॉर्मेशन मिला. ठीक है, यहाँ से हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये इंफॉर्मेशन है कि जो टिपिकल एंजियोस्पर्म का एंथर है वो बाइलोब्ड है ना. हर लोब के अंदर दो थेका होता है, इसीलिए हम इसको डाइथेकस बोलते हैं. दोनों थेका को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव होता है. यहाँ से ये तीन इंफॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आप साइड में नोट्स बनाओ, इस चीज को लिख लो. ठीक है, साइड में नोट डाउन कर लो. ओके, नाउ अब ये चीज देखो यहाँ पे, द बाइलोब नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर. अभी हम जो देख के आ रहे हैं. ठीक है, द एंथर इज अ फोर साइडेड स्ट्रक्चर और a tetragonal structure consisting of four microsporangia located at the corners, two in each lobe. ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, तो दिस विल कंटेन द microsporangia. Okay, this will contain the microsporangia. Now the microsporangia develop further and they become the pollen sac. यानी कि प्रीवियसली जो माइक्रोस्पोरेंजिया है
वो फ्यूचर में जाके बन जाएगा पोलन सैक। एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज है कि पोलन सैक के अंदर क्या डेवलप होगा। पोलन सैक के अंदर अनडाउटेडली पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होगा, ठीक है ना। दैट इज द पॉइंट। नाउ they extend longitudinally all through the length of the anther and they are packed with pollen grains। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऐसे, ठीक है, तो ये पूरा लेंथ वाइज यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है और इसके अंदर what is contained, they contain the pollen grains inside this structure, ठीक है। So I hope this thing is clear to you, okay। तो आज हमने क्या देखा यहाँ पे, we discussed about the significance of flower, ठीक है, उसका नॉर्मल कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है। एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, ये 4-5 एग्जांपल दिया नहीं है, उसने बोला है कि आप देख लो, ठीक है, तो ये चीज नीट में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन 3 इवेंट्स होता है, उसके बारे में हमने बात किया, ठीक है। पहले हमने यहाँ पे देखा कि प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है, उसी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं और हमारा डिस्कशन उसी पे चालू रहेगा, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट प्री फर्टिलाइजेशन और उसके वेरियस इवेंट्स, ठीक है, और उसमें इन्वॉल्व स्ट्रक्चर्स के बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा पहला जो स्ट्रक्चर है दैट इज ऑफ स्टेमन और द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेमन। स्टेमन के अंदर हमने देखा कि एक एंथर होता है, ठीक है, और उस एंथर को नीचे थैलेमस के साथ या फिर पेटल के साथ कनेक्ट करने वाला एक यहाँ पे ये फिलामेंट होता है, ठीक है। और एंथर के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एंथर सारे बाइलोब्ड होते हैं और ये हर लोब में 2-2 थेका होता है, तो हम इसको डाइथेकस बोल देते हैं, ठीक है। और जब आप एक एंथर को ट्रांसवर्स ऐसे काट के देखोगे, ठीक है, एट द 4 कॉर्नर्स यू विल फाइंड द 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। और वो माइक्रोस्पोरेंजिया बाद में जाके पोलन सैक बनेगा जब उसके अंदर पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो अभी कुछ टर्म्स ऐसे आएंगे जैसे माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया प्लूरल है, ठीक है, उसका सिंगुलर जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम है, ओके। ये चीजें जो है ना थोड़ा सा ध्यान में रखना आप, ठीक है। जैसे एक टर्म आ गया ना यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया एक टर्म आ गया जो बाद में जाके बनेगा पोलन सैक, ओके, ये बाद में जाके बनेगा पोलन सैक, दिस इज माइक्रोस्पोरेंजिया। अब माइक्रोस्पोरेंजिया यानी कि पोलन सैक, ठीक है, फिर आपको एक टर्म मिलेगा माइक्रोस्पोर्स, राइट। जस्ट मतलब इसका रिलेवेंस जो है आप इसको समझते हुए जाओ। माइक्रोस्पोर्स मिलेगा, ठीक है, एक और एक टर्म मिलेगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ऑल दिस थिंग्स आर रिलेटेड, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ वर्ड्स आएंगे, ठीक है, दिस माइट बी न्यूअर वर्ड्स फॉर यू, ठीक है, बट ध्यान में रखते हुए चलना है एंड अल्टीमेटली यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। सो लेट्स रैप अप दिस लेक्चर यहीं पे हम खत्म करते हैं इस चीज को, ठीक है। अगला लेक्चर जो होगा उस पे आएगा स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। So please keep revising, please keep studying the NCERT, okay, and please try to find out what can be an important question for the next NEET examination by looking at the NCERT, ठीक है। So the sole purpose, the only purpose of this course is to help you understand the NCERT, help you pick the questions, help you pick important topics और important statements, ताकि आप जब नीट में जाकर बैठो ना तो आपको एक लगे कि हाँ यार ये चीज़ तो मैंने सोचा था, मैंने ये चीज़ देखा था या फिर सर ने बताया था, ठीक है, और वही चीज़ हमको यहाँ पे आज एग्जामिनेशन में मिल रहा है, ठीक है ना। सो प्लीज फॉलो टू दैट थिंग, ठीक है, तो उसी चीज़ को हम करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस, ओके, हैव अ लवली टाइम।